السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ اور ہم تمام حضرات مل کر اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار دربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم کر درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری یہ عادت ہے کہ میں وقت سے پہلے تیاریاں کرنا پسند کرتا ہوں، جو چونکہ رمضان عنقریب آنے والا ہے تو رمضان میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کن چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ہوتا ہے، کب صرف کفارہ ہوتا ہے، کب قضا کرنی پڑتی ہے، روزہ رکھنے سے کیا ملتا ہے، نہیں رکھنے سے کیا سزا ہے، یہ ساری چیزیں اگر رمضان آنے سے پہلے ہمیں معلوم ہو جائے تو بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ آدمی روزہ رکھتا ہے۔ اس لیے اپنے معمول کے مطابق میں 2 جمعہ انشاءاللہ آپ حضرات کو روزے کے تعلق سے معلومات فراہم کروں گا۔ اس جمعہ میں یہ بتانا ہے کہ روزہ کب فرض ہوا، صرف ہم پر کیا اوروں پر بھی فرض ہوا، روزہ نہیں رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا سزا مقرر کی ہے، پھر دنیا میں کیا سزا ہے اور آخرت میں کیا سزا ہے۔ پھر اگلے جمعہ کو ہم یہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ انجیکشن لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، انسولین سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، آنکھ میں دوا ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں، کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا، جو جدید مسائل ہیں اس پر گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ معزز سامعین کرام، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کے ترجمے سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ صرف ہم پر فرض نہیں ہوا بلکہ ہم سے پہلی امتوں پر بھی اللہ نے روزہ فرض کیا، جیسے کہ قرآن کہتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزہ فرض ہوا جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر فرض ہوا تھا۔ تو پہلے والوں میں جتنی امتیں گزری ہیں ان پہ بھی روزہ فرض تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پہلے کی بہت ساری امتیں اپنی مرضی کے مطابق روزہ رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر نصارہ پر جب روزہ فرض ہوا تو ان لوگوں نے دیکھا سخت گرمی میں روزہ رکھنا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، اور سخت سردی میں بھی روزہ رکھنے میں پریشانی ہوتی ہے، نہایت ہی شدید ٹھنڈی ہو، سخت سردی ہو تو گودڑی کے اندر سے انسان باہر نکلنے کو پسند نہیں کرتا، تو اس وقت بھی تکلیف ہے، اور سخت گرمی ہو، حلق سوکھ رہا ہو تب بھی روزہ رکھنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں کہ فلاں مہینے میں روزہ رکھو، جیسے کہ اللہ نے ہمیں کہا کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو۔ اب اگر ہم کہیں کہ یہ رمضان بڑا گرمی ہے، 2-4 مہینہ گزر جانے دیجیے، ہم لوگ ربیع الاول میں روزہ رکھ لیں گے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ رمضان میں تو رمضان ہی میں رکھنا ہے۔ تو ان لوگوں نے ملا کر دیکھا کہ ٹھنڈی میں بھی روزہ رکھنے میں بہت زیادہ پریشانی، جب شدید ٹھنڈی ہو اور سخت گرمی ہو تو بھی پریشانی ہے، تو ہم لوگ کیا کریں گے، جب ہمیں روزے کا مہینہ آئے گا گرمی میں یا ٹھنڈی میں، اس میں نہیں، موسم بہار میں روزہ رکھیں گے۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم میں ترمیم کی، موسم بہار میں روزہ رکھنا شروع کیا، اور اس کا توڑ یہ نکالا کہ چلو ہمیں 20 رکھنے کا حکم ہوا تو 10 ہم ایکسٹرا رکھ لیں گے۔
ये वक्त पे ना रखने का जो गुनाह है 10 एक्स्ट्रा रख करके हम पूरी उसको दूर कर लेंगे। फिर बादशाह क्या करते थे, अल्लाह उसके रसूल के जो हुक्म होते थे उसको तोड़ते थे। मिसाल के तौर पर एक बादशाह बीमार हो गया तो उसने कहा कि अगर मैं सेहतमंद हो जाऊंगा तो 10 रोजे बढ़ा दूंगा मेरी तरफ से। अल्लाह ने उसको सेहत दी तो पूरी रियाया में हुक्म दे दिया कि मुझे अल्लाह ने सेहत दी है, लिहाजा 20 की जगह 30 रोजा रखेंगे। सारे लोग अब 30 रोजा रखने लगे। वो मर गया, दूसरा बादशाह आया, उसने बोला कि एक काम करते हैं, हम लोग 50 रोजा रखेंगे। वो हुक्म भी तब्दील किया, यानी इंसान ही तब्दील कर रहे थे अहकाम। अब 50 रोजा रखने लगे। दो जानवर मर गया तो जानवर मरने लगे, कहीं इंसान ना मरने लगे, चलो 20 रोजा और बढ़ा देते हैं, 10 पहले 10 बाद में, 70 रोजा रखने लगे। तो इस तरीके से हुक्म में इस्तेकाम नहीं था। अल्लाह उसके रसूल ने जो फरमाया उसमें मजबूती नहीं थी, आगे भी करते थे पीछे करते थे, अफरात तफरीक थी। यह अल्लाह का बेपनाह करम है उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह ने जो कह दिया वो हमारे लिए पत्थर की लकीर है। जो कह दिया वो कह दिया, रसूल ने जो फरमा दिया, ना उससे हम एक कदम आगे जा सकते हैं ना उससे एक कदम पीछे हटेंगे इंशाअल्लाह। कुछ लोग हैं, चंद लोग जो इल्म से आरी हैं, जिन तक समझिए कि फहमो फिरासत जिनकी सलामत नहीं है, वो ये कहते हैं कि मैं सिर्फ जो है बड़े 5 रोजे रख लेता हूं। बड़ा 5 रोजा कौन सा है? 21वीं का, 23वीं का, 25वीं का, 29वीं का, इस तरीके से 27वीं का, इसको लोग बड़ा रोजा समझते हैं, तो जब बड़ा रोजा रख लेते बाकी नहीं रख पाते हैं। ये गलती है। और मैंने खेड़े में भी इमामत की है तो मैंने देखा कि कुछ लोग उपास रखते थे। जब गैर कौम रखते ना उपास, उस टाइम अपना रोजा नहीं रखते थे, बोले वो आसान है, जरा फल फ्रूट खाते रहो और रोजा भी रखो। अपना रोजा जो है बड़ा टेंशन वाला है, बहुत तकलीफ दे है। कुछ लोग ऐसे भी मिले, तो खैर ये चंद है उंगली पर गिने जाने के लायक। अक्सर उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को तस्लीम करती है कि अल्लाह के रसूल ने जो रोजे फर्ज किए रमजान में, तो रमजान ही में रोकना है। रोजे 30 है या महीने का है तो 29 है तो 29 ही, 28 तो 28, जैसा महीना आता है उतनी हमको रखना है। जैसा अल्लाह उसके रसूल ने फरमाया उस पर हमें अमल करना है। हजरात, सबसे पहले एक रोजा फर्ज हुआ, वो रोजा कौन सा था? यौम आशुरा का। फिर ये हुक्म मनसूख हुआ, अय्याम बीज के रोजे फर्ज हुए, 13वीं, 14वीं, 15वीं हर महीने की तारीख को। ये हुक्म भी मनसूख हुआ। फिर 30 रोजे फर्ज हुए, एक रमजान के पूरे महीने के रोजे फर्ज हुए। मगर इसकी नौमियत ऐसी थी कि आप ईशा से पहले पहले सहरी खा लेते। अगर बीवी से मिलना होता तो मगरिब और ईशा के बीच में, ईशा के बाद ना तो आप खा सकते थे ना बीवी से मिल सकते थे। फिर ईशा बाद से लेकर दूसरे दिन गुरूब आफ्ताब तक आपका रोजा होता था। फिर यह हुक्म कब मनसूख हुआ? हजरत सुरमा बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला, खेती बाड़ी करने वाला आदमी, बूढ़ा इंसान था, दिन भर मेहनत किया, रात को आया मगरिब बाद, बीवी से कहा कि खाना लाओ। बीवी ने कहा मैं खाना बना रही हूं, थोड़ी देर इंतजार कीजिए। दिन भर थके हुए थे, परेशान थे, बैठते ही आंखें लग गई, सोए। जैसी सोकर आंखें खुली, बीवी ने जगाया, उठिए खाना खा लीजिए। कि शरीयत का हुक्म यह है कि सोकर के उठ के आप खाना नहीं खा सकते। ईशा से पहले खा ले, ईशा बाद नहीं खा सकते। अब मेरी आंख लग गई, अब मैं नहीं खाऊंगा। वैसे दूसरा रोजा रख लिया हज़रत सुरमा बिन कैस ने, और पहले से तो कमजोर थे ही, दूसरे दिन नकाहत के हालत में गश खाकर गिर पड़े। सरकार की खिदमत में ये बात पहुंची तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान नाजिल फरमाया कि अब तुम लोग फजर तुलू होने तक सहरी खा सकते हो। यानी सोकर उठकर जब तक कि फजर का टाइम शुरू नहीं होता है उससे पहले पहले तुम सहरी कर सकते हो। मगर बीवी से सोहबत करना अब भी हराम था। फिर एक रोज हजरत उमर फारूक आजम से ऐसी गलती हो गई कि आपने ईशा के बाद बीवी से हमबिस्तरी फरमाई, और गलती करने के बाद सरकार की खिदमत में आया कि या रसूल अल्लाह मुझसे गलती हो गई। क्या हुआ? कि शरीयत का हुक्म यह है कि ईशा से पहले यह काम होना चाहिए, और मैंने ईशा के बाद सोकर उठ करके ऐसा मेरे मुझसे सरजद हो गया। जो भी मेरे लिए आपका हुक्म हो वो कबूल है। अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया, महबूब आपकी उम्मत को यह छूट दी जाती है
कि वो फजर से पहले पहले ये सारे काम कर सकते। तो ये पहले के रोजे और आज के रोजे में इतनी तब्दीली आई है कि अब अल्लाह ने हमें सहाबा किराम के सदक़े में ये छूट दिया कि अब ईशा से पहले पहले खाना नहीं है, बल्कि ईशा के बाद से लेकर फजर तक तुम खा सकते हो, सहरी के वक्त तक। अब रोजा हमारा क्या है? सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने, बीवी से जिमा करने से रुके रहने का नाम रोजा है। अगर कोई बिला उज़्र शरई रोजा ना रखे, उज़्र शरई का मतलब यह है कि शेख पानी है, बूढ़ा है, रख नहीं सकता है, तो वो फिदिया अदा करे। इतना बीमार है कि रोजा रख लेगा तो हलाकत का खौफ है या बीमारी तवील होने का खौफ है, जो कि कोई मुसलमान हाजिक डॉक्टर ने मशवरा दिया हो तो गैर मुस्लिम जो डॉक्टर है उसकी बात मोतबर नहीं है। तो अगर कोई बिला उज़्र शरई एक रोजा छोड़ दे तो दुनिया में यह हुक्म है कि उसे कत्ल किया जाए। ये दुनियावी अहकाम है। बादशाह इस्लाम, जहां पर मुस्लिम हुकूमत है, बादशाह इस्लाम के लिए पावर है कि वो इस्लामी हुक्म नाफिज करे, और वो इंसान जो बिला उज़्र शरई एक भी रोजा छोड़ दे उसे कत्ल कर दिया जाए। इससे पता चलता है कि जब दुनिया में इतना सख्त अजाब है कि एक रोजा हम बिला उज़्र शरई छोड़ दें तो हमारी जान ले लेने का हुक्म है, तो पता चला कि मरने के बाद न जाने किस तरीके के खतरनाक सजाएं रोजा तोड़ने वाले के लिए होंगी। इसका अंदाजा तो अल्लाह और उसके रसूल ही लगा सके, आप और हम जैसे लोगों के ज़हन और तस्वुर में भी नहीं आ सकता है। मगर कुछ अहादीस करीमा में इशारात मिले हैं जिससे पता चलता है कि रोजा तोड़ने वालों का बड़ा सख्त अजाब है। जैसे कि सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक ख्वाब बयान किया। देखिए, याद रखिए, नबी का जो ख्वाब होता था वो वही इलाही होती थी, वो कोई झूठा ख्वाब नहीं होता था नबी को। तो सरकार फरमाते हैं कि आज रात मैंने देखा कि जिब्रील अमीन मेरे पास आए और एक दुश्वार गुजार पहाड़ के ऊपर लेके गए। चलने के रास्ते बड़े तंग थे, ऊपर चढ़ना मुश्किल था, मगर जब उस दुश्वार गुजार रास्ते से चलकर मैं आगे बढ़ा तो मेरे कानों में चीखने की आवाज आई। तो मैंने कहा, जिब्रील ये किन लोगों के चीखने की आवाज है? तो जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूलल्लाह वही तो दिखाने के लिए आपको लाया हूं, तशरीफ ले चलें। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्रील अमीन लेकर गए तो सरकार फरमाते, मैंने देखा कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उल्टा लटका दिया गया, जैसे कसाई लोग बकरे के पांव के रग में रग जो होती है नस, उसमें कड़ी लगा करके उल्टा लटका देते हैं, मुंडी नीचे पांव ऊपर। तो ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको बकरे की तरह उल्टा लटका दिया गया है, और फिर कुछ फरिश्ते ऐसे मुकर्रर हैं जो हथियार से इसको फाड़ रहे हैं, यहां से यहां तक फाड़े, और फाड़ने के बाद फिर इधर जब तक फाड़े तब तक ये बंद हो जाता है, ठीक हो जाता है। फिर इधर का जख्म शुरू हुआ, इधर बंद हुआ तो इधर फाड़ना शुरू किए, फिर जब तक इधर फटे इधर फिर ठीक होगा, फिर इधर फाड़ा जा रहा है। तो कयामत तक सिर्फ उसको अजाब देना मकसूद। तो मेरे आका ने कहा, ये कौन लोग हैं जिनको इतना दर्दनाक अजाब हो रहा है? इसके गलफड़े जो फाड़े जा रहे हैं, इसके जबड़े फाड़े जा रहे हैं, कितना बड़ा गुनहगार होगा, कौन लोग हैं ये? तो सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत के ये वो लोग हैं जो रोजा तो रखते थे मगर इफ्तारी का वक्त होने से पहले ही रोजा तोड़ देते थे। ये वो लोग हैं जो रोजा तो रखते थे मगर इफ्तारी का टाइम होने से पहले ही ये रोजा तोड़ देते थे। जरा सोचिए मुसलमानों, जो रोजा रखकर तोड़ दे उसकी सजा का ये आलम है, जो रोजा ही ना रखे तो उसकी सजा का आलम क्या होगा? जरा सोचिए कि उसने रोजा तो रखा, 2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, 1 मिनट पहले भी अगर उसने रोजा तोड़ दिया तो उसके लिए सजा यह है कि सरकार फरमाते हैं कि उसके गलफड़े फाड़े जा रहे थे और कयामत तक उसको यह अजाब दी जाएगी। जब से मरेगा, मौत के वक्त से लेकर कयामत कायम होने तक उसके लिए अजाब मुकर्रर है
कि उसके गलपड़े जबड़े फाड़े जाएंगे, बस फरिश्ते का यही काम होगा। इससे मालूम हुआ मुसलमानों कि रोज़े रमजान आखिरत में जिस तरीके से हमारे लिए एक ढाल है अजाब से बचने के लिए, उसी तरीके से अगर इसे ना रखा जाए तो ये सबब है हमारा अजाब में गिरफ्तार होने की। छोटी छोटी बीमारियों को लेकर रोजा तोड़ देते हैं लोग। सर दर्द हुआ रोजा रखना छोड़ देते हैं, हल्का सा बुखार हो गया रोजा रखना छोड़ देते हैं, थोड़ी सी जुकाम हो गई रोजा नहीं रखते हैं। थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर इंसान रोजा तोड़ देता है या रखता ही नहीं है। सोचता है कि हमें छुट्टी मिल गई, थोड़ी सी बुखार है, आज सर्दी है, खांसी है, इसलिए हमने रोजा नहीं रखा। आप जानते हैं, आप ये कहते हैं कि रोजा रखेंगे तो बीमार हो जाएंगे, आपके नबी ने क्या फरमाया? सरकार फरमाते सोमो तसहु, रोजा रखो, बीमार हो तो सेहत मिल जाएगी। सरकार फरमाते सोमो, रोजा रखो, तसहु, अगर तुम्हें बीमारी भी है तो अल्लाह तुम्हें सेहत अता फरमाएगा। ये हमारे नबी कह रहे हैं। ये कोई दुनिया का कोई लीडर कारपोरेटर वादा नहीं कर रहा है कि भाई वो बस वोट के लिए, इलेक्शन के लिए वादा कर रही है। ये अल्लाह के नबी का कौल है। समंदर का धारा बदल सकता है, हवा का रुख बदल सकता है, पहाड़ अपनी जगह से टल सकता है, आसमान जमीन पर आ सकता है, जमीन आसमान से ऊपर जा सकता है। नबी का कौल झूठा नहीं हो सकता। उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। सुमु तसहु, रोजा रखो सेहत मिल जाएगी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, रोजा रखते तो बीमार भी पड़ते हैं, तो कहते हैं रोजा रखा था बदहजमी हो गई, रोजा रखा था पेट खराब हो गया, रोजा रखा था तबीयत खराब हो गई। भाई साहब, रोजा रखने से पेट खराब नहीं हुआ। इफ्तारी के बाद ऐसा लगता है कि बांध के रखा गया था। जैसे इफ्तारी का टाइम इतना खाने लगे तो पकौड़ा भी खा रहे हैं, बिरयानी भी खा रहे हैं, कलिंगड़ भी खा रहे हैं, तरबूज भी खा रहे हैं, भज्जी भी खा रहे हैं, केला भी खा रहे हैं, अंगूर भी खा रहे, खजूर भी खा रहे। इतनी सारी चीजें जब आप खाओगे और एक ही कटोरी में रखोगे तो भला बीमार नहीं होगे तो सेहत मिलेगी। आप एक डब्बा ले लीजिए, डब्बे के अंदर चावल भी रखिए, रोटी भी रखिए, गोश्त भी रखिए, दाल भी रखिए, केला भी रखिए, अंगूर भी रखिए, खजूर भी रखिए, तरबूज भी रखिए, कलिंगड़ भी रखिए। ये सारा सामान रख करके 24 घंटे के लिए ढक्कन बंद कर दीजिए। जब आप खोलेंगे तो बदबू से वहां पर पहुंच नहीं पाएगी, खराब हो जाएगा सब। इतनी सारी चीजें एक ही कटोरी में, अलग अलग नौकियत की, अलग अलग मिजाज की चीजें एक कटोरी में रखेंगे तो वो खराब नहीं होगा, होगा ना? तो एक ही तो पेट है भाई। ऐसा थोड़े आप खाने बना के तरबूज इधर रखेंगे, कलिंगड़ इधर रखेंगे और खजूर इधर रखेंगे, केला इधर रखें, ऐसा तो नहीं है ना। एक ही कटोरी है, वो मैदा है, उसी में सारा सामान जब रखेंगे तो वो तो खराब होगा ही। जब खराब होगा तो आपकी तबीयत खराब होगी। तो खाने पीने से तबीयत खराब हो जाती है, बोलते रोजा रखना था बदहजमी हो गई। नहीं, ये कौल सरकार ने फरमाया सूमू तसहु, रोजा रखो सेहत मिल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये नाचीज रजब शाबान रमजान 3 महीने का रोजा रखता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे इतना सुकून मिलता है, इतना मजा आता है, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मामूलात जिंदगी जैसे थे वैसी चल रहे हैं, कहीं कुछ परेशानी नहीं है, अच्छा लगता है। तो रोजा का रमजान का महीना आ रहा है, आप और हमको सबको तैयार रहना चाहिए, खुश दिली से, दिल के अंदर से। सरकार फरमाते जो रमजान आने से खुश हो और रमजान जाने से गमगीन हो, अल्लाह उस पर जहन्नम की आग हराम कर देता है। रमजान आने से जो खुश हो जाता है, रमजान आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो जाने से गमगीन हो रहा है कि इतना अजीम मेहमान हमको छोड़कर जा रहा है, अल्लाह उसके ऊपर जहन्नम की आग हराम कर देता है। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी नेमत है रमजान हमारे लिए, हम उस चीज को समझ ही नहीं पाते। और रोजा तोड़ करके अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करके अल्लाह उसके रसूल की वईदों का मुस्तहिक बन जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर रसूल पर बैठे हैं, जब उतरने लगे, पहले जीने पर उतरे तो आपने फरमाया आमीन, दूसरी जीने से उतरे सीढ़ी से, फिर आपने फरमाया आमीन, तीसरे से उतरे, फिर आपने फरमाया आमीन। साहबा किराम ने सोचा सरकार इस वक्त आमीन क्यों कह रहे हैं, आज से पहले तो कभी ऐसा देखा नहीं कि मिंबर से उतरते टाइम आप आमीन कह रहे हैं। कहा या रसूल अल्लाह फिदा का भी होगी, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप ये बताएं इस वक्त आमीन कहने की वजह क्या थी, कोई खास बात?
सरकार ने फरमाया हाँ खास बात है। कहा क्या? कहा जिब्रील अमीन आए थे अभी अभी यहाँ पर। सुभान अल्लाह, जरा गौर कीजिएगा, दिमाग में लीजिएगा। वहां सारे सहाबा थे, सरकार भी थे, कोई देख ना पाया, नबी की आंखें देख रही थी। किसी ने ना देखा, सरकार ने देखा। ठीक है, इसलिए जो चीज दिखाई ना दे उसका इनकार नहीं करना है, बल्कि ये देखना कि हमारे नबी ने देखने का दावा किया है। तुमने नबी ने कह दिया मैंने देखा है, या नबी ने कह दिया वो चीज है, तो हमारा ईमान है कि वो चीज है। मानना हमारा काम है, देखना नबी का काम है। फरमाया भी जिब्रील अमीन आए थे यहीं पर। तो या रसूलल्लाह, फिर तो उन्होंने कुछ दुआएं की, मैंने आमीन कहा। क्या दुआएं की? तो कहा उन्होंने कहा कि हलाक हो जाए वो इंसान, हलाक हो जाए वो इंसान जिसके सामने या रसूल अल्लाह आपका नाम लिया जाए और वो आप पर दुरूद ना पड़े। मैंने कहा आमीन। बद्दुआ करने वाले फरिश्तों के सरदार, आमीन कहने वाले नबियों के सरदार। क्या ये बद्दुआ रद्द हो सकती है? जरूर अल्लाह कबूल करेगा। हलाक हो जाए वो इंसान जिसके सामने आपका नाम लिया गया हो और वो आप पर दुरूद ना पड़ा हो। सरकार ने कहा आमीन। का दूसरे जीने से उतरा, जिब्रील अमीन ने कहा या रसूलल्लाह, हलाक हो जाए वो इंसान जिसने अपने बूढ़े वालिदैन को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत नहीं हासिल कर लिया। मैंने कहा आमीन। नौजवान बच्चों के लिए दरस इबरत है। सरकार ने फरमाया, जिब्रील अमीन ने क्या कहा कि माँ बाप की, बूढ़े माँ बाप की खिदमत करना जन्नत में जाने का सबब है। ये आप उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल कर सकते हैं। तो सरकार फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन ने कहा हलाक हो जाए वो इंसान जिसने अपने बूढ़े वालिदैन को पाया, उनकी खिदमत करके जन्नत नहीं हासिल कर ली। सरकार फरमाते उनकी बद्दुआ पे मैंने आमीन कहा। यकीनन वो हलाक होने वाला है जिसने माँ बाप की खिदमत नहीं की। अब जिसके वालिदैन आज नहीं है, उनके लिए एक रास्ता खुला है कि उनके नाम पर इसाले सवाब करें, सदका और खैरात करें। तो हो सकता है कि जो कोताही उनकी खिदमत करने में हुई है, अल्लाह ताला उनके नाम पर इसाले सवाब करने से खुश हो जाए और वो खुद भी खुश हो जाए कि मेरा बच्चा कम से कम जिस वक्त मुझे नेकियों की सख्त जरूरत है उस वक्त तो मुझे याद कर रहा है। ठीक है, ये एक रास्ता है। उसके बाद सरकार फरमाते हैं फिर जब मैं एक जिना और उतरा तो जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह, हलाक हो जाए वो इंसान जिसने रमजान का महीना पाया और उसके रोजे नहीं रखे। सरकार फरमाते मैंने कहा आमीन। पता ये चला रोजे रमजान जो ना रखे उसकी हलाकत के लिए जिब्रील अमीन ने बद्दुआ की है, और उस बद्दुआ के ऊपर कबूलियत की मोहर आमीन लिखा करके मेरे आका ने फरमा दी। सरकार ने आमीन कहा कि जो रमजान के महीने का रोजा पाए और वो ना रखे वो हलाक हो जाए। तो हजरात मोहतरम, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह उसके रसूल और जिब्रील अमीन की बद्दुआ के जद में आप ना आए, तो आपके लिए जरूरी है कि रमजान का महीना आ रहा, पहले से तैयार हो जाए, फिट एकदम फाइनल इरादा कीजिए। हालात कुछ भी हो इंशाअल्लाह रोजा जरूर रखेंगे इंशाअल्लाह। बंदा जब इरादा करता है, मुस्तहकम इरादा करता है, पक्का इरादा करता है, तो अल्लाह ताला मंजिल उसके लिए आसान फरमा देता है। सब निर्भर करता है दिल के ऊपर, इरादे के ऊपर। आप क्या चाहते हैं अल्लाह वो देखता है। दिल की तख्ती पे रब तबारक व तआला की नजर है, नजर कुदरत है, वो देख रहा है कि बंदे के दिल में क्या है। आपके दिल में जो है वो आपके लिए अल्लाह ताला आसान फरमा, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो जाए, मुश्किल क्यों ना हो जाए। आप और हमारे लिए मुश्किल है, मेरे रब के लिए वो मुश्किल नहीं है कि आपको वहां तक वो पहुंचा दे। वो तो कादिर मुतलक है। ठीक है, अच्छा एक हदीस पाक और सुनिए। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बिला उज़्रे शरई रमजान का एक रोजा छोड़ देगा उसे 9 लाख बरस तक जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। बिला उज़्रे शरई बोल रहा हूं, याद रखिएगा। शरीयत ने बूढ़ों के लिए इजाजत दी है जो रोजा नहीं रख सकते हैं, बूढ़े हैं, शेख पानी है बेचारे, समझ रहे हैं, उठने बैठने की ताकत नहीं है, बहुत ही कमजोर इंसान है, उनके लिए इजाजत है। कमजोरों के लिए कि नहीं खाएंगे तो गश खा के गिर पड़ेंगे। ठीक है, तो शरीयत ने उनको इजाजत दी कि वो रोजा ना रखें और फिदिया अदा करें, उनके लिए इजाजत। या सख्त बीमार है कि रख नहीं सकते, रखेंगे तो जान निकल जाएगी, तो उनके लिए इजाजत है। उज़्रे शरई है तो इजाजत है। बिला उज़्रे शरई सरकार फरमाते जो एक रोजा छोड़ेगा
9 लाख वर्ष तक उसको जहन्नम में जलाया जाएगा। 9 लाख वर्ष तक। अब ये तो 9 लाख वर्ष का मैंने जुमला कह दिया। 9 लाख वर्ष जहन्नम में रहने का वैसे तो किसी के अंदर कैपेसिटी नहीं है, मगर रहना तो पड़ेगा। जब अल्लाह ताला पकड़ के डाल देगा तो वहां तो रहना पड़ेगा, अगर अल्लाह ने गिरफ्त किया तो। याद रखिए, जहन्नम की आग को दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा जलाने की ताकत हासिल है। जहन्नम की आग को दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा जलाने की ताकत जहन्नम की आग को हासिल है। कहते हैं, किताबों में लिखा है कि अगर किसी जहन्नमी को जहन्नम के आग से निकाल कर दुनिया के तनूर में डाल दिया जाए तो वो सोचेगा मैं एसी में आराम कर रहा हूं। उसको लगेगा एसी जैसी कैफियत है, इसके अंदर कुछ भी ताकत नहीं उसके बनिस्बत। जहन्नम की आग का अगर सुई के जो होल है जिसमें धागा डालते हैं, उस मिकदार में भी जहन्नम की आग को दुनिया में खोल दिया जाए तो पूरी दुनिया जलकर राख हो जाएगी। ये हाल है जहन्नम की आग का। 1000 वर्ष तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन्नम की आग को दहकाया तो कहते जहन्नम की आग बिल्कुल लाल हो गई। फिर 1000 वर्ष तक दहकाया तो जहन्नम की आग बिल्कुल सफेद हो गई। फिर 1000 वर्ष तक दहकाया तो जहन्नम की आग बिल्कुल काली हो गई। तो कहते हैं आज जहन्नम की आग बिल्कुल काली है कि उस आग में जब डाला जाएगा इंसान को तो वो खुद के बदन को भी नहीं देख पाएगा, इतनी काली है। कहीं अगर मुसीबत में इंसान 2-4 आदमी एक साथ होता है तो उसकी तकलीफ कम होती है कि नहीं? मुसीबत में अगर कोई 2-4-10 आदमी एक साथ गिरफ्तार हो तो तकलीफ कम होती है। मिसाल के तौर पर किसी कैद खाने में 25-50 कैदी एक साथ रहता है तो एक दूसरे से बात करके देख सुन करके दिल बहल जाता है, थोड़ी सी तकलीफ कम होती है। मगर किसी कैद खाने में अगर अकेले एक कैदी रहे तो कितना टेंशन आएगा। तो जहन्नम की काली आग में हर जहन्नमी को ऐसा लगेगा कि मैं अकेले ही यहां पर हूं। सख्त तकलीफ, सख्त तकलीफ। उस तकलीफ को अल्फाज में हम बयान भी नहीं कर सकते। आप सोचते होंगे जब इतनी जलाने की ताकत है तो गिरते ही तो जलकर राख हो जाएंगे। नहीं, सिर्फ ऊपर की खाल जलेगी, जैसी जल के खत्म हुई अल्लाह नया खाल चढ़ा देगा। क्योंकि वहां अजाब देना मकसद है, जलाकर खत्म करना मकसद नहीं है। कुल्लमा नज़जत जुलूदहुम बद्दलनाहुम जुलूदन आखर, कुरान की आयत है कि जब उसकी खाल जल जाएगी, जलकर गिरेगी, हम उसको दूसरे नया खाल चढ़ा देंगे, अल्लाह फरमाता है, और जलाते रहेंगे जब तक अल्लाह चाहेगा, जलाता रहेगा। तो दोस्तों 9 लाख वर्ष तक जहन्नम की आग में रहना कितना तकलीफ में होगा, उसका अगर एहसास करना चाहते तो 1 मिनट दुनिया के आग के तनूर में बैठ के देख लीजिएगा। सिर्फ 1 मिनट, 60 सेकंड, 9 लाख वर्ष नहीं, 1 मिनट किसी तनूर में जाइए और कूद कर बैठ जाइए तो पता चल जाएगा कितने दिन आपको दवाखाने के में बेड में बैठना पड़ता है। 1 मिनट सिर्फ दुनिया के आग में अगर आप चाहें तो जहन्नम की आग का अंदाजा कर। जब हम दुनिया की आग में 1 मिनट नहीं बैठ सकते तो जहन्नम की आग में 9 लाख वर्ष तक कैसे बैठेंगे? इसलिए रमजान आ रहा है, खुदारा किसी से भी बिला उज़्र कोई रोजा छूटने ना पाए। पहले से तैयार रहिए, इरादा बना लीजिए। हाँ, उज़्र है तो अल्हम्दुलिल्लाह, जब शरीयत आपको छूट दे रही है तो मैं कौन होता हूं आपको वो जबरदस्ती बोलने के लिए रोजा रखिए आप। नहीं, शरीयत छूट दे रही है तो आप छूट का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप उज़्र शरई आपके साथ कर सकते हैं इस्तेमाल, मगर अगर उज़्र शरई आपके पास नहीं है तो खुदारा एक भी रोजा आपका छूटने ना पाए। गिन गिन करके, चुन चुन करके बेहतरीन अंदाज में हर रोजा को रखिए, क्योंकि ये रोजा हमारी निजात का जरिया है। इस रोजे के जरिए हम आखिरत में, सरकार की हदीस है कि रमजान और कुरान बंदे मोमिन की कयामत में शफाअत करेंगे। रोजा कहेगा मौला मैंने सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक इसको खाने नहीं दिया था, लिहाजा इस बंदे के हक में मेरी शफाअत कबूल कर इसको जन्नत में दाखिल फरमा। कुरान कहेगा मौला तरावी की नमाज में मैंने इसको खड़ा रखा था, ये खत्म कुरान सुन रहा था, रात को कुरान की तिलावत करता था, रात को मैंने इसको सोने नहीं दिया था, ये मेरी तिलावत किया करता था, इसके हक में मेरी शफाअत कबूल फरमा। अल्लाह ताला कुरान और रमजान की शफाअत के सदक़े में बंदे को जन्नत में दाखिल फरमाए। ये तो हमारे लिए हथियार है, हमारी निजात का जरिया है।
इसी को हम छोड़ देंगे तो हमें क्या मिलने वाला है। हजरत मोहतरम, मैंने यही तरीका इख्तियार किया कि रमजान आने से 2 जुमा पहले से मैं ये तैयारी जो मेरी होती है वही मैं आवाम के सामने रखता हूँ। मुझे मेरे मुख्तदी ने कहा, मौलाना मेरी उम्र तकरीबन 60 साल है, मैंने जिंदगी में कभी रोजा नहीं रखा था, आपका खिताब सुनकर मैंने 30 दिन के रोजे रखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात की खुशी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, यही चीज अगर मैं 15 रमजान के बाद सुनाऊं तो आप बोलेंगे अभी बोल के क्या फायदा, मेरे तो 15 रोजे छूट गए। इसलिए रमजान से पहले ही सारी गुफ्तगू हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको एक एक चीज, एक एक मसला जो जदीद मसाइल है अगले जुमा में बताऊंगा इंशाअल्लाह अज़ीज, कि इन मसाइल पर अगर हम अमल करेंगे, इंश्योरेंस लेने से रोजा नहीं टूटता है, इंजेक्शन लेने से रोजा नहीं टूटता है, आंखों में दवा डालने से रोजा नहीं टूटता। क्यों नहीं टूटता है, ये अगले जुमा में इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने मैं खिताब करूंगा, बयान करूंगा, जदीद मसले पर गुफ्तगू होगी। आज सिर्फ इतना जाने कि रमजान का रोजा हमारी निजात का जरिया है, न रखे तो जहन्नम में जाने का सबब है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को ये तौफीक दे कि हमसे कोई रोजा छूटने ना पाए और एक एक रोजा हम लोग पाबंदी से रखा करें। अब यहां तक तो गुफ्तगू मेरी खत्म होगी तकरीर की।